A very good morning to everyone and welcome to the Utthan session today. So, before we begin, I have two requests for you all. First is that you all please switch on your cameras so that we interact more properly. And second is that we had circulated a feedback form for the session, requesting all of you all who have not filled it, please do it by today. Coming back to the session, so we started a new series this month, which was on addiction, and I hope that you enjoyed the previous session by Dr. Parab. Today, we have Sister Prachi, who will be taking the second session. I will quickly take a minute to introduce her. Sister is a motivational speaker from Bhilai. She has been stimulating others with intense positive power in her words that comprise of deep spiritual understanding and positive energy of spiritual practice, bringing in change in lives of thousands of people across the country. She has had a brilliant academic career and has won several national level competitions. From her childhood, she has been involved in the spiritual study of spiritual knowledge, understanding the hidden aspects, its effects, and practical usage. She is an excellent orator and has been guiding people, including the young students, engineers, scientists, and in various organizations in national and international conferences. Besides this, she is also involved in various creative works and multimedia production towards the elevated goal of establishing a value-based society. The organizations that have been benefited from her include the DRDO Delhi, IIT Kharagpur, Ranbaxy Pharmaceuticals, Hero Honda, and a lot many more. She has also been awarded with the Dr. Ambedkar Gyan Ratna Award. Sister, on behalf of everyone, I'd like to welcome you to the Utthan session. Thank you, and over to you. Om Shanti. Sister, you're on mute. Thank you. And it's a great pleasure to be amidst you again. This is our second meeting and hope so कि हम सब इसे बहुत enjoy भी करेंगे. It will be an interactive session and surely कुछ change लेकर आएगा ये session. Okay. The topic given was addiction free. हम किस तरह से एडिक्ट होते हैं और किस तरह से हमें इस एडिक्शन से छूटना है. पिछले बार आप सबने देखा बहुत सारी बातें, लेकिन हो सकता है हर एक व्यक्ति उन सब नशे से नहीं जुड़ा हुआ होगा, लेकिन कुछ एडिक्शन हम सब अपने लाइफ में रोज एक्सपीरियंस करते हैं. एडिक्शन मतलब उस चीज की ऐसी आदत पड़ जाती है जो उसके बिना हम जैसे रह ही नहीं सकते. उसके बिना अगर जैसे एक जो अल्कोहल लेने के आदती होते हैं, उनको अगर एक दिन भी अल्कोहल नहीं मिले तो जैसे कि उसका जीवन ही खत्म है. जबकि अल्कोहल पीकर वो अपना जीवन खत्म कर रहा है, लेकिन उसे क्या लगेगा जैसे अल्कोहल नहीं मिला तो उसका जीवन खत्म हो गया. So what exactly addiction is? What exactly addiction is? आपका ये सीरीज चल रहा है. मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या समझते हैं what exactly this addiction means? क्या एडिक्शन सिर्फ बाहर की इन सब नशे की चीजों का होता है? एडिक्शन का मतलब क्या होता है? Yes. Addiction, what in spiritual terms, what we experience is एक false, एक experience मुझे होने लगता है कि शायद इसी से मुझे खुशी मिलेगी, और एक मनुष्य का मन जो है, मन और बुद्धि उससे जाके अटैच हो जाती है. बिकॉज उसे चाहिए क्या? उसको चाहिए खुशी, उसको चाहिए शांति, उसको चाहिए सुख. ये चीज के लिए वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, चाहे काम कर रहा, चाहे परिवार के बीच, चाहे सोसाइटी के बीच, जो कुछ कर रहा है वो ये तीन चीज चाह रहा है. एंड व्हाट एग्जैक्टली एडिक्शन इज कि कोई चीज से हमें एक फॉल्स एक्सपीरियंस होने लगता है
कि इसी से ही मुझे खुशी मिल रही है, इसी से ही मेरे को सुख है। और हम क्या करते हैं, हमारा मन और बुद्धि उससे जाकर अटैच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको दूसरी भाषा में समझते हैं। जैसे हम ईगो देखते हैं, ईगो कितना बड़ा आज हमारे जीवन का दुश्मन है ना। व्हाट इज दिस ईगो? इसके ऊपर भी शायद आपकी पहले क्लासेस हुई होंगी। ईगो क्या है कि मेरा एक फॉल्स इमेज मैं अपना क्रिएट कर लेता हूं, यही हूं मैं, उसी से मेरा सम्मान, उसी से मेरी एक रुतबा, उसी से मेरी एक पहचान, और उससे मैं अपने आप को अटैच कर लेता हूँ। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, एक फॉल्स इमेज मैंने खुद से खुद क्रिएट कर ली है। मैंने खुद से खुद क्रिएट कर लिया, मैं तो मालिक हूं ना, चाहे अपने परिवार का, चाहे अपने डिपार्टमेंट का, चाहे अपने ऑफिस का, चाहे किसी भी जगह का। मैं कहीं भी अपना एक फॉल्स इमेज क्रिएट कर लेती हूँ और उसी से सोचती हूँ इसी से मेरा सम्मान है। तो उस फॉल्स इमेज को हम पकड़ के रखते हैं जहां जाते हैं, और वो ईगो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ठीक ऐसे ही हम किसी चीज से एक फॉल्स एक्सपीरियंस करते हैं कि इसी से मुझे सुख मिलेगा। जैसे एक नशा लेने वाला, सिगरेट पीने वाला, या अल्कोहल लेने वाला, या अनेक प्रकार के दूसरे जो खराब नशे हैं, उनको लेने वाला सोचता है इसी को पी के तो मैं एकदम शांत, एकदम सुखी, दुख भूल जाता हूं। पकड़ लेता है उसको। हम सब क्या करते हैं? जरूरी नहीं हम सब वो सब नशा करते होंगे, खराब नशा, लेकिन कुछ अच्छे नशे करते हैं। हाँ? अच्छे नशे किस चीज का पता है? हाँ? एक बहुत बड़ा नशा आज के समय में, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, मोबाइल। मोबाइल एक ऐसी चीज हो गई है जिसके बिना अगर कोई एक दिन भी गुजारने बोलो तो बड़ा ही मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि सोचते हमारा तो जैसे कि जीवन ही खत्म हो गया। मैं आपको शेयर कर रही हूँ। यस, इज इट विजिबल? इज इट विजिबल? Yes, yes, it is visible. ओके, फाइन। एक डिजिटल एडिक्शन इतना हो गया है, थोड़ा सा आप हम अपने लिए अपने को देखेंगे। आज के समय में अर्थ की ये स्थिति है, हर एक चल रहा है, जा रहा है कहीं पर भी, तो बस एक मिनट भी वो खाली नहीं है। चल भी रहा है, उसको जहां जाना है उसके बारे में भी सोच रहा है, वहां जाकर क्या काम करना है उसके बारे में भी सोच रहा है, उसके ऊपर हैवी टास्क भी हो सकता है, लेकिन उसके हाथ से मोबाइल नहीं छूट रहा। जस्ट सी द सिनेरियो। और उसका असर कहाँ हो रहा है पता है? जब एक जस्ट एक इमेज है, ये ऊपर हेवन की एक कार्टून बनाया किसी ने कि जो न्यू अराइवल्स है ना, वो बेचारे बड़े परेशान है, वो अपने हाथों को ही देख रहे हैं, समथिंग मिसिंग समथिंग, उनको आदत पड़ चुकी है। हाँ? कभी वो समय था, वी वर व्हेन वी स्टार्टेड ना यूजिंग मोबाइल, तो हम मास्टर हुआ करते थे कि हम मोबाइल को कहते थे मुझे ईमेल खोल के दो, मुझे न्यूज दिखाओ, मुझे फोटोज सेंड करने हैं, मुझे ये उनके घर पे कॉल लगा कर दो। तो मोबाइल कहता था यस मास्टर। और आज का समय क्या हो गया? दिस वाज द स्टार्टिंग स्टेज। और जब हम उसके गुलाम, अभी मोबाइल मोबाइल गुलाम था हमारा, और अब क्या हुआ है? मोबाइल हमारा गुलाम है। वो कहता है चार्ज मी, गिव सम वाईफाई नाउ, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ये करो, मुझे हाथ लगाओ, मेरे से ये चेक करो। अब हम कहते हैं यस मास्टर। सो हमारा माइंड क्या हो गया है? मोबाइल मेरे लिए है या मैं मोबाइल के लिए हूं? हम पहले तीन बंदर सुना करते थे, बड़ा सुंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अब नाउ दिस फाइनली द फोर्थ ऐप हैज कम, दिस ऐप
ये बंदर जो है ना, चौथा बंदर, ये सम है सारे लोगों का। क्योंकि जब हम मोबाइल देख रहे होते हैं तो कुछ और हमें दिखाई नहीं देता, कुछ और हमें सुनाई नहीं देता, कुछ ही और से हम बात नहीं कर रहे होते। परंतु इस मोबाइल के अंदर हम क्या देख रहे होते हैं, इसलिए इसको सेल फोन कहा जाता है। सेल है ना, कैद। हाँ, एक प्रिजन है ये। नाउ द पीपल आर प्रिजनर्स ऑफ देयर फोन, इसीलिए तो इसको सेल फोन कहते थे। जरा हम देखें, हम एक आधे मिनट में भी कितना देर हम एकाग्र हो पाते। आधा मिनट भी आप शांत बैठो, आपका मन कितना एकाग्र हो रहा है। और ये एकाग्रता, ये फोकस, ये हमारे अंदर की जो शक्ति, मेरी अपनी ताकत थी, वो ताकत खत्म किया है सेल फोन ने। सेल फोन से बहुत आज का ये ह्यूमन इवोल्यूशन कहते हैं, ये दिस इज नॉट राइट, बट कहते हैं जो कि ह्यूमन किस तरह से बंदर से इवॉल्व हुआ और आज सीधा खड़ा था और फिर वापस टेढ़ा हो गया है, वापस उसी तरह आज एक बंदरों के जैसे जी रहा है। आज हम कहते हैं कि अगर मान लो क्राइस्ट अगर ही वुड हैव कम अगेन टुडे ना, तो लोग जो है उनके ब्लेसिंग्स लेने के बजाय उनकी फोटो खींच रहे होते। और आज की स्थिति, पीपल नाउअडेज, ना उन्हें खुद की फिक्र है ना उन्हें दूसरों की फिक्र है। सही है। साथ साथ ये हमारे रिलेशंस को किल कर रहा है। दोनों हस्बैंड वाइफ आज एक थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए निकले, लेकिन वो व्यक्ति तो बिजी है। वाइफ कहती है कि काश मैंने मोबाइल ही अपने माथे पे चिपका लिया होता तो कुछ देर के लिए मुझे महसूस तो होता कि वो मुझे देख रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। हर एक बच्चे से लेकर बड़े तक बैठे तो साथ में है। जस्ट सी, अपनी दिनचर्या को जरा देखिएगा, अपने अपनी चीजों को जरा देखिएगा। नॉट एंजॉइंग द रिलेशंस, नॉट एंजॉइंग द मील्स, इसका असर क्या हो रहा है? आप बताएंगे इसका असर क्या हो रहा है? ये देखिए, गाड़ी में चलते भी फुर्सत नहीं है। दिस इज द फैक्ट आज के समय का। इन 1 मिनट ऑफ द इंटरनेट वर्ल्ड, आपको पता है 60 सेकेंड्स, जस्ट इन 60 सेकेंड्स पूरे वर्ल्ड में आज फेसबुक 11,035 बार अकाउंट्स रिमूव होते हैं, ज्वाइन होते हैं। आप कितने बार आप यूट्यूब को देखो, जूम मीटिंग 6.3 मिलियन जूम मीटिंग टेकन पर मिनट। आप इस चीज को देखो तो आपको लगेगा कि टेक्स्ट मैसेज 18.8 मिलियन, गूगल सर्चेस 2.4 मिलियन जस्ट इन अ मिनट, वीडियो आवर्स व्यूड 6,94,000। आप अगर इन सब चीजों को देखो तो आपको इसे लगेगा कि 1 मिनट में सारी दुनिया सिर्फ जैसे नेट पर ही बैठी हुई है, काम भी कर रही है, लेकिन सारी दुनिया में आप देखो तो इस मोबाइल ने कितना व्यक्ति को उसका एडिक्ट बना दिया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एडिक्शन आपको कैसा लगता है इस मोबाइल का? क्या आप एक दिन बिना मोबाइल के अच्छा लगेगा आपको? कई बार तो लोग कहते हैं तो बहुत बड़ा पनिशमेंट है, कहीं पर भी भेज दो मुझे, दुनिया के किसी कोने में भेज दो, पनिश कर दो, बस मोबाइल दे देना, वहां पे कुछ भी ना हो चलेगा, कोई व्यक्ति ना हो चलेगा, बस मोबाइल साथ में दे देना। परंतु व्हाट इज इट डूइंग? आज आपको पता है कि जब भी हम साथ में हम कोई भी कार्य कर रहे होते, हमारे जो अंदर में जो हमारा माइंड का कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, कोई काम बड़ा होता ही नहीं है। काम तो
जो अभी हम कर रहे हैं ना तो बहुत छोटा है। आपको पता हो ब्रह्मा कुमारी से एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बहनों द्वारा संचालित। लोग कहते हैं इतना विशाल कार्य आप सब कैसे कर लेते हो। Yes, free from the waste thoughts, free from the distractions। इतने बेकार के जो थॉट्स आते हैं उससे भी हमें फ्री होना है। हमारे अंदर जो पॉजिटिव थॉट्स से और उससे भी ऊपर एलिवेटेड थॉट्स की जो पावर है उसको यूज करके हमको बहुत कुछ करना है। अभी तो हम कर रहे हैं वो बहुत छोटा सा काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति पूरी दुनिया हिला सकता है। हम कर क्या रहे हैं? अभी तो हमें छोटा सा काम भी भारी लग रहा है और कहते हैं बाप रे इतना सारा काम हम करेंगे कैसे। जो कर रहे हैं वो तो बहुत छोटा है। आपके पास जो क्षमता ईश्वर ने दी है ना सोल के अंदर, वो तो अथाह है। इमेंस पावर ऑफ गॉड हमारे अंदर भरी हुई है। वी आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। और उस सारी पावर को हम क्या यूज कर रहे हैं? ये जो हमारा डिस्ट्रैक्शन है ना, हम अपना काम भी करते रहेंगे ना तो थोड़ी देर में वो एक नोटिफिकेशन आता है मोबाइल में, बार बार ध्यान जाएगा किसका आया होगा। बार बार खोल के उसको। आजकल के यूथ तो और अधिक, जो आज यूथ की एनर्जी आज कितना बड़ा एक कंस्ट्रक्टिव काम में लगना चाहिए। ये दुनिया हमें बदलनी है और वो बेचारे अपने को ही खराब कर रहे हैं। दुनिया को क्या नया बनाएंगे। आज हम ये देखते हैं कि ये जो एक आदत, ये जो एक एडिक्शन, ऐसे ही आप देखिए, ये तो मैंने एक एडिक्शन बताया आपको। बताओ ऐसे सुबह सुबह उठते हैं, या तो न्यूज़पेपर, या तो आजकल इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, कौन सा किसको विभाग मिला, कौन मंत्री बने, क्या हुआ, न्यूज में क्या हो रहा है दुनिया में। हाँ, जरा देख ले। ये एक सुबह उठते ही जहां दिमाग भाग रहा है, नहीं, सुबह उठते ही अपने साथ मुझे बैठना है। जो चीजें मुझे अपने साथ बैठने में एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है वो मेरा एडिक्शन है। वहां बार बार मन भाग रहा है। कई बार आपको एक चीज और बताऊं, किसी को आदत पड़ जाती है अपने लिए ना प्रशंसा सुनने की। मैं एक और एडिक्शन बताऊं, ऐसी ड्रेसेस पहनेंगे, ऐसे अपने चीजों को बनाएंगे या ऐसी चीजें यूज करेंगे। अगर यूज नहीं कर रहे कुछ ऐसी चीज, अब कितना नया खरीदेंगे। तो कई ऐसी बातें करते हैं, पता है, मतलब वो किस तरह कहते हैं ना, एक्स्ट्रा कई ऐसी बड़ी ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो हुआ भी नहीं हो, पर वो बताएंगे मेरे बच्चे ऐसे, मेरा प्लान है ऐसे, वो ऐसे। बस किसी तरह की आदत, दूसरे मुझे बहुत ऊंची नजर से देखे मेरी प्रशंसा तो करे, लेट मी बी द पार्ट ऑफ द गॉसिप। मैं जो लोग बात कर रहे हैं मैं उसका एक पार्ट बन जाऊं। कई तरह के एडिक्शंस है और बार बार बुद्धि वहां जाती है, बार बार बुद्धि को वो चीजें खींचती है और हम सारा दिन उसमें लगकर अपनी सारी एनर्जी, सारी पावर, सब कुछ वेस्ट कर देते हैं। लेट्स एनालाइज अवरसेल्व्स। किन चीजों का एडिक्शन मुझे, हर एक को है, हर एक को है, और मुझे इससे बाहर निकलना है। तब हम एक यूजफुल टाइम खुद को, फैमिली को और अपने कार्य को तब दे सकेंगे। एंड तब मेरा जीवन एक वर्थ, एक एक वर्थ लाइफ मेरी बनेगी, जिसको जीकर आपको भी खुद से सेटिस्फेक्शन होगा, एक सुकून मिलेगा। एक शरीर छोड़ू तो खुशी खुशी से छोड़ू, एक संतुष्ट होकर इस जीवन से जाऊं कि हाँ मैंने बहुत अच्छा और बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छा जिया। होता क्या है कि हमारे जो ये डिस्ट्रैक्शंस है ना, हाँ, आप देखो, आप काम कर रहे हो आपका बुद्धि जाएगी, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। ये भी एक एडिक्शन, क्योंकि लोग मेरे बारे में अच्छा बोले, ये मेरी एक आदत बन चुकी है। बस कुछ नहीं है, क्यों बार बार बुद्धि जा रही है। जैसे किसी का मोबाइल फोन में बुद्धि जा रही है तो मेरी बुद्धि उसमें जा रही है। हाँ, कि लोग मुझे बारे में हमेशा अच्छा बोले, वो मेरी एक आदत, वो मैंने अपना एक बना लिया है। बस ये मुझे चाहिए, इसके बिना मैं खुश नहीं। मैंने क्या कहा कि दिस इज अ फॉल्स
एक एक्सपीरियंस जिससे हम जुड़ जाते हैं कि इसी में मेरी खुशी, इसी में मेरा सुख, इसी से मेरी शांति। कोई भी वो फॉल्स एक्सपीरियंस, मेरे को अपनी प्रशंसा सुनने से वो एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो मैंने उससे अपने आप को ऐसे पकड़ लिया, उससे अपने आप को जोड़ लिया, वो मेरा एक एडिक्शन बन गया। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे आज देखो जो अल्कोहल लेते हैं, वो लेना है अल्कोहल, वो दुनिया की कुछ भी चीज कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होंगे, लेकिन वो जाके अल्कोहल खरीदेगा। घर में खाने को पैसे नहीं होंगे, लेकिन वो जाके अल्कोहल खरीदेगा। ऐसे ही हमारे पास भी कुछ अच्छा करने के लिए या अपनी यूजफुल चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, लेकिन हम जाके अपने लिए नई ड्रेस खरीदेंगे, महंगी से महंगी से महंगी हम गाड़ी खरीदेंगे, या महंगी से महंगी चीजें खरीदेंगे, क्योंकि हम कैसे लोगों को शो करेंगे। तो दिस इज द सेम थिंग, ये एक जैसा है, ये एडिक्शन है। हम जिस तरह उसको बुरा मान रहे हैं ना, ये भी उतना ही बुरा है जितना हम समझते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, उतना ही मुझे अपने लिए समझना है, मुझे भी तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सो ये हमारे क्या करता है कि बार बार हम कोई चीज करने जाते हैं, हमारा बार बार फोकस वहीं जाएगा जो चीजें हमें चाहिए, जिसको मैंने पकड़ रखा है। और ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं ब्रेन स्विचिंग। आप एक काम करने जा रहे हो, आप देखना एक मोबाइल टन टन नोटिफिकेशन आया, तुरंत ध्यान गया वहां पे। या आपको एकदम से याद आया, अरे मैंने अपने उस फलाने रिलेटिव को एक मैसेज डाला था, उसका रिप्लाई नहीं आया अभी तक। वो बार बार देखेंगे आया कि नहीं, ये आया कि नहीं। अच्छा बच्चे कहीं बाहर है, अच्छा वो फलाना मेरा रिलेटिव, अरे उसका कुछ आया नहीं अभी तक। मैंने कुछ पोस्ट किया था, अच्छा इसका देखो लाइक कितने बढ़ गए हैं। मेरा यूट्यूब में मैंने ये चीज डाला था, इसके व्यूअर्स कितने बढ़ गए हैं, सब्सक्राइबर्स कितने बढ़ गए हैं। बार 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 बार, दिस इज कॉल्ड ब्रेन स्विचिंग। और आपको पता है, सिर्फ ब्रेन का स्विचिंग जो चीज होती है ना, इसकी हमें एक पेनाल्टी भरनी पड़ती है। आपको वापस अपने ब्रेन को काम पे लगाने के लिए एक्स्ट्रा पेनाल्टी देनी पड़ती है। काम बड़ा नहीं होता, लेकिन ये जो बार बार डाइवर्शन है ना, भले वो मोमेंटरी डाइवर्शन होता है, लेकिन वापस से आपको अपना फोकस के साथ काम करने में आपको बहुत बड़ी, दिस इज कॉल्ड ब्रेन स्विचिंग पेनाल्टी। ये सब चीजें जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, ये आपको पता है कितना छोटा सा काम होता है, आप यूं कर सकते हो। इतना कोई बड़ी चीज है, कोई दुनिया की कोई चीज कोई बहुत बड़ी होती है। हमारे तो सोल में इतनी पावर है, ब्रेन सुपर कंप्यूटर है, क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शंस, बिवेयर ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शंस, ये बहुत बड़ी हमें पेनाल्टी देनी पड़ रही है। आजकल देखो तो ये हमारा जो है ना, ये हमारा 80% हमारा प्रोडक्टिव टाइम को ये खत्म कर रहा है। इट्स किलिंग 80% ऑफ आवर प्रोडक्टिव टाइम। हमारा फोकस बिगड़ रहा है। और आपको पता है फोकस क्या चीज होती है? फोकस इज लाइक अ मसल, जस्ट लाइक योर क्वाड्स और योर बाइसेप्स ना। उसको हम जितना एक्टिवेट करते हैं, उसको हम जितना यूज करते हैं, उतना वो स्ट्रांग बनता है। और अगर यूज नहीं कर रहे हैं, इट बिकम्स इनएक्टिव। हम अपने फोकस को कितना देर यूज कर रहे हैं? आप अपने अंदर से ये चीज को ट्राई कीजिए, अटेंशन दीजिए, यस, ½ एन आवर, जरा भी कोई चीजों का डिस्ट्रैक्शन नहीं, फुल कंसंट्रेशन, फुल एकाग्र होकर मुझे ये चीज करनी ही है। मैं तो कह रही हूँ, अभी आप सुन रहे हैं ना, थोड़ा सा जस्ट 20 मिनट्स आर लेफ्ट, फुल एकाग्रता से बस सुनना ही है। प्रैक्टिस कीजिए ना, जो कर रहे हैं उसको कैसे करना है, विदाउट एनी सिंगल डिस्ट्रैक्शन। तब आपको लगेगा, अरे मैं ये क्या, मेरे को मेरे पास मैं इसको अपनी फोकस जैसी पावर को यूज नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे ये इनएक्टिव होता जाएगा, फिर आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे।
हमें आजकल क्या हो गया है पता है? मल्टीटास्किंग। फटाफट हम स्विच करते हैं अलग अलग टास्क। हर 3 मिनट 5 सेकंड में ऐसे लगेगा नहीं अभी ये नहीं, अभी ये, फिर ये। एक रिसर्च स्टडी है, इसकी बहुत बड़ी पेनल्टी आपको देनी पड़ती है। और यही चीज आप एक चीज पर एकाग्र होकर कर लो, चीजें आसान होती जाएगी। एक किया, फिर आराम से दूसरा, फिर आराम से तीसरा। इतने कर लेंगे जैसे आपको ऐसे लगेगा यस, रियल माई लाइफ इज वर्थ माई टाइम आई हैव स्पेंट इन वर्थ। समय भी चला जाता है और देखते हैं कितने काम पेंडिंग रह गए। कारण क्या? फोकस की कमी है। फोकस क्यों नहीं? ये एडिक्शंस। अपने आप को देखना, एनालाइज करना और फिर उससे मुझे छूटना है। मुझे अपने आप को उससे छुड़ाना है। कोई नहीं छुड़ा सकता। इट्स लाइक अ ट्रैप। इस ये जो प्रिजन है ना, ये किसी और ने आपको डाला नहीं है उससे, उसमें तो कोई और छुड़ा भी नहीं सकता है। उसमें डाला आपने, खुद ने आपको है। तो छुड़ाएगा कौन? आपको खुद आपको अपने को छुड़ाना होगा। हम यूजुअली कोई चीजें हम जब पढ़ते थे, याद है शुरू में कोई चीजें हम पढ़ते थे, और आजकल हम हर चीज सर्फिंग करते हैं। पढ़ने का जमाना तो गया आजकल। पर आपको पता है हमारे ब्रेन की एनर्जी कितनी लगती है? जो चीजें पढ़ने में हम एकाग्रता से उस चीजों को समझ पाते थे, सर्फिंग से आजकल हम समझ नहीं पाते। हमारा ये ब्रेन का एरिया है जो इतना अधिक यूज होता है। इसलिए देखिए, पढ़ते पढ़ते हमें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज थोड़ा भी सर्फिंग करते हुए हम थक जाते हैं। हमारी सारी एनर्जी चली गई अंदर से, ऐसे महसूस होगा आपको। मिला भी कुछ नहीं और एनर्जी भी सारी चली गई। हमारा ये पूरा ब्रेन का हिस्सा, जो ये हमारे स्कैन में दिखाया है कि ये इमेज ऑन द लेफ्ट डिस्प्ले, ये दिखाता है कि जो ब्रेन एक्टिविटी वाइल रीडिंग द बुक, और ये राइट जो पार्ट है इसमें दिखाया है कि द ब्रेन जो कि इंटरनेट सर्फिंग के दौरान जो यूज होता है, ब्रेन इंगेज होता है। सो जब हमारा ब्रेन इस तरह से ओवर थिंकिंग, वैसे ही हमारे पास हम अपने इतनी सारी बातों की थिंकिंग को हम रोक नहीं पा रहे, और एक्स्ट्रा इतनी चीजों में हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये हमारा ब्रेन, जैसे आप ये देख रहे हैं, हाइपर एक्टिव होता जाता है। एक मल्टीटास्किंग का एक एक जैसे जुनून आता जाता है, इन अटेंशन, और उसका फिर रिजल्ट एक डिप्रेशन की ओर हम बढ़ते जाते हैं। हमारे ब्रेन कहीं शुरुआत होती है एक चीज से, फिर उसमें फंसते 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 फंसते, जैसे उसमें पूरी तरह से उस प्रिजन में जकड़ जाता है और मोटी जंजीरों में बढ़ जाता है, और उसमें एक डिप्रेशन की ओर बढ़ जाता है। और किसी ने नहीं बांधा है आपको, खुद निकल सकते हो। एक ऐसी ताकत इन जंजीरों को तोड़कर आप बाहर आ सकते हो। अब देखो, जरा सा मेरे पोस्ट किए हुए फोटो में या वीडियो में लाइक्स नहीं आए, तो वो जो सोच बढ़ती है, वो सोच कितनी तरह की सोच ले आएगी। फलाने को दिया, उसका रेस्पॉन्स नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, धीरे 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 उसके साथ एक कई ऐसी सोच डेवलप होने लग जाएगी ऑटोमेटिक। मतलब इतनी चीजों में हम आगे बढ़ जाते हैं कि वो रिलेशंस में भी एक सिर्फ एक उसने लाइक नहीं किया, कि एक उसने रिप्लाई नहीं किया, तो रिलेशंस में हम दूर हो जाते हैं। हो सकता है वो बिजी हो सकता है उसका फोन डिस्चार्ज हो सकता है वो किसी और में बिजी हो सकता है उसने नहीं देखा, लेकिन उतने हमारे थॉट्स चलते जाएंगे। यानी ये सब चीजें ऐसा होता है कि सब रिजल्ट होते होते डिप्रेशन की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं। साइकोलॉजी ऑफ टेकिंग सेल्फीज, ये भी बहुत आजकल चल रहा है। प्लीज इससे बचिए। हाँ, सोचते हैं इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। कुछ शो ऑफ, कुछ सोशल कंपटीशन, कुछ अटेंशन सीकिंग, कुछ मूड मॉडिफिकेशन का लिए यूज करने लगे।
तो कहने का भाव ये सब चीजें हमें ऐसे लगता है हम कितना कितना हम इन सब चीजों में उलझते चले जा रहे। कहाँ तो हमें इस बॉडी कॉन्शियस से दूर सोल कॉन्शियस बनना है, तो हमारी सारी हम अपनी पोटेंशियल और एनर्जी को यूज कर सके। और कहाँ हमारे इन सेल्फिश से और अधिक हम बॉडी कॉन्शियस की ओर बढ़ते चले जा रहे। सोशल मीडिया में हमारा ये देखो बहुत तरह की चीजें, आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल बिना तो खाना नहीं खाएंगे। इसकी मम्मी ने इसको उठाया नहीं है, इसकी मम्मी ने सिर्फ इसकी मोबाइल छीन लिया है। ये हम कुछ सोचते थे कि अगर सुबह सुबह बच्चे को उठा दिया जाए तो उसकी एक कंडीशन है, नहीं सिर्फ उससे मोबाइल छीन लिया है और कुछ नहीं। तो कहने का भाव जो हमारा एक समय जो एक स्नेह प्रेम में जाना चाहिए था वो कहाँ जा रहा है। आज सोशल मीडिया टाइम से हम देखें तो कितना डिप्रेस्ड एक स्टेट में हम जा रहे हैं, डिक्रीज अटेंशन स्पैन, एक एंग्जाइटी की ओर। और सोशल मीडिया से हमारा सेल्फ एस्टीम भी कम होता चला जा रहा है। दूसरों के हम देखते हैं आजकल स्टेटस देख देख के लोग, अरे वो इतना खुश है, अच्छा वो लोग यहाँ घूमने जा रहे हैं, अच्छा चलो हम भी प्लान करते हैं। हमारी अपनी चीज तो हमारा चला गया, हमारा सारा फोकस दूसरों के उसमें चला जाता है। हम कितने अच्छे, हमारा सेल्फ एस्टीम कितना है। अरे दूसरे तो ऐसे है कि अपने को खुश दिखाने के लिए कई चीजें कर देते हैं। एक एक व्यक्ति का बहुत सुंदर बहुत अच्छे अच्छे स्टेटस में पोस्ट आते थे, तो वो अगले दिन हमारे पास में आया, कहता है दीदी मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में, ये वो मेरा ऐसा स्टेट हो रहा है मेंटल। मैंने कहा भाई मुझे तो किसी ने बताया कि आप तो बहुत कहीं कहीं घूम रहे हो, आप तो ऐसे ऐसे। बोले रे दीदी कुछ तो मुझे करना पड़ेगा ना, लोगों के सामने मैं अपना दुख थोड़ी जाहिर कर सकता हूँ। हम अपने हम अपनी इंटरनल मेंटल स्टेट दूसरों के सामने थोड़ी दिखा सकते हैं, रियलिटी को थोड़ी ना दर्शा सकते। और हम उसी में ही अपनी बुद्धि फंसा लेते हैं। वो एक समय था मुझे याद है, किसी ने सही कहा कि पहले के समय में हम कुछ खाना खाते थे ना, तो उसको एकदम प्राइवेसी में जाके स्टेशन ट्रेन में भी बैठ के खाते, तो कैसे जैसे लोग ना देखे ना, अच्छा नहीं लगता, दूसरों की नजर हमारे भोजन पर पड़ती है, तो ऐसे लगता है उनके मन की सोच चल रही है, तो मैं अकेले कैसे खाऊं, एनर्जी अच्छी नहीं लगती खाने में। तो हम ऐसे लगता था कि अकेले अलग से बैठकर खाएं, किसी की नजर न जाए, किसी की सोच न चले, यस ऐसा होता है ना। और आजकल क्या करते हैं, जो खा रहे हैं उसकी फोटो खींच के स्टेटस में डाल देते हैं, लो सब देखो हम क्या खा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ? कितना दुनिया बदल गई है, क्या चीजें दिखा रहे हैं, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। कितनी लोगों की नेगेटिव एनर्जी सब जा रही है इन सब चीजों में। हम देखते हैं हमारा सेल्फ एस्टीम कम होता जा रहा है। हमें क्या ये करना है अपने लिए, हम कितना दांव पे लगा रहे हैं ना अपनी अपनी खुद की जो असली शक्ति है, उसको दांव पे लगा दे रहे हैं छोटी छोटी अपनी हैबिट से। क्या कंट्रोल नहीं करना चाहेंगे इसको, खत्म नहीं करना चाहेंगे इसको? फिर आप देखना आपकी शक्ति क्या काम करती है। एक तरफ सुबह मेडिटेशन या स्पिरिचुअल स्टडीज से हम अपनी ताकत को बढ़ाना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ इन सब चीजों से अपनी सारी शक्ति अपना सेल्फ एस्टीम सब खत्म कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि वो डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ये नहीं कह रहे, बट वी नीड टू लर्न टू कनेक्ट विद इट इन अ बेटर वे। ये कोई तरीका नहीं है वर्ल्ड से कनेक्टेड रहने का। सो हमें क्या करना होगा, बस अपने ऊपर छोटा सा टेंशन, अगर हमारा अटेंशन दूसरी चीजों में जा रहा है, उन चीजों में जा रहा है, तो पता है क्या होता है, ये एक लॉ है कि वेर एवर माई अटेंशन गोज माई एनर्जी फ्लोज।
and wherever my energy flows, life grows. हम अगर किसी और की तरफ में अटेंशन दे रहे हैं, दूसरों की चीजों में अटेंशन दे रहे हैं, तो मेरी सारी एनर्जी उस तरफ फ्लो हो जाती है और मेरी सारी लाइफ जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। मेरा अटेंशन खुद की ओर, खुद पर, सेल्फ पर। लेट्स एनालाइज माय ओन सेल्फ। दूसरों का चिंतन क्यों? क्या मैं स्टेटस देखना बंद नहीं कर सकती? धीरे धीरे रिड्यूस कीजिए, जीवन ज्यादा खुशनुमा हो जाएगा। जिसको जो मुझे मैसेज देना है वो मुझे मैसेज पोस्ट कर देगा। दुनिया की चीजों को क्यों देखूं? दिस इज ऑल अनरियल थिंग्स पीपल आर पोस्टिंग। बहुत कुछ कुछ चीजों पर हम अपना ध्यान, मुझे ध्यान तो अपने ऊपर देना है ना। ये क्या होता है, जैसे जैसे मेरी आदत पड़ती जाती है, एक बार दो बार, फिर ये एक न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप होने लगती है। हमारा ब्रेन कंटिन्यूअली वो उन चीजों की ओर इजीली जाने लगता है। हो सकता है शुरू में आपको वो चीजें करने के लिए आपको टाइम लगेगा। अभी हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप करनी है फॉर पॉजिटिविटी। हमें एक वीक की प्रैक्टिस करनी है, एक सप्ताह प्रैक्टिस कीजिए। न्यू कनेक्शंस कैन ग्रो विथ 1 वीक्स प्रैक्टिस। विथ 8 वीक्स प्रैक्टिस ब्रेन जो है वो एक ऑब्जर्वेबल चेंजेस लाने लगता है और हम न्यू हैबिट्स बना सकते हैं। सो ये डिटॉक्स करने के लिए अपने अंदर ये प्रैक्टिस शुरू कीजिए। एक सप्ताह, 1 वीक अपने को हम करें। ई फ्री मील ले सकते, ई फ्री मील, ई फ्री बेडरूम बना सकते। नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को मुझे वो करना है। जैसे हम बाकी चीजों की फास्टिंग करते हैं, एक कोई दिन हम मोबाइल की फास्टिंग कर सकते हैं। सोने के पहले 1 घंटा पहले मोबाइल छोड़ दीजिए। आप देखिएगा कुछ चीजें ऐसी है जिसको करते हुए आपको बहुत एक नई एनर्जी महसूस होगी, एक नई शक्ति महसूस, एक नयापन अनुभव होगा। शुरू तो कीजिए। अच्छा, इसमें से आप खुद चूज कीजिए आप क्या चीजें शुरू करेंगे। जस्ट सिलेक्ट वन, करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना है अपने लिए, अपने। और तब आपको खुद से प्यार होने लगेगा, आपके फैमिली से, आपके फ्रेंड्स से ज्यादा अधिक। आप उससे, उसके साथ ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। यस, तो चलिए इन द लास्ट 1 मिनट मेडिटेशन करें। आई एम रियलाइजिंग माई ओन एडिक्शन। लेट्स सिट डायरेक्ट। जो कुछ कर रहे हैं, जो हाथ में है, एक साइड में रख दीजिए। Detached from the external world. Let's move inside. Detached completely from the external world. Let's move inside. मेरी अपनी अंदर की दुनिया है, मेरे अपने फीलिंग्स, मेरे अपने इमोशंस, मेरे अपने थॉट्स, मेरी अपनी मेमोरीज। मेरी अंदर की दुनिया को मुझे बहुत पॉजिटिव
पावरफुल, ब्यूटीफुल, प्योर बनाना है। जितना अंदर शुद्ध है, मेरे फीलिंग्स, मेरे थॉट्स, मेरे इमोशंस, ये जितने प्योर है, शुद्ध, जितने पॉजिटिव है, उतना मैं रियल पीस में हूँ, उतना मैं रियल पावरफुल हूँ, और उतना रियल I am satisfied, I am enjoying my all work. So, मेरा अटेंशन खुद पे, मुझे बाहर की दुनिया का कोई कचरा अंदर नहीं लाना है। I know who I am. I know what is best for me. I know God is my best companion. मुझे सबसे बड़ा सुख खुद को अंदर से क्लीन और पॉजिटिव रखने से मिलता है। मुझे सबसे बड़ा सुख अपने हर कार्य को समय पर अच्छे से करने पे मिलता है। मुझे सबसे बड़ा सुख हर एक के साथ पॉजिटिव फीलिंग के साथ व्यवहार करने से मिलता है। एंड नथिंग एल्स कैन गिव मी that happiness, that feeling of real sukh. Nothing else. कोई और चीज मुझे इतना सुख नहीं दे सकता। I am a powerful child of God. Om Shanti. 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 Thank you. Thank you, Sister Prachi, for coming and for taking such a beautiful session. And thank you, everybody, for attending. Let us meet the next week and try and do the activity that we've chosen for ourselves for 1 week. Thank you, everyone. Have a nice day. Om Shanti. Om Shanti.